Hello students, welcome all of you in Shyam Sir's Biology. Today we are going to discuss about the important topic of the chapter photosynthesis. All of you know photosynthesis is a process of food formation carried out by the plants in the presence of light. So during this photosynthesis process there are main two phases, also called light reaction and dark reaction, or in another word we can say photochemical phase and biosynthetic phase, right? So here in photochemical phase, that is during light reaction, an important process or important phenomenon occurs, and that phenomenon is photophosphorylation. So today we are going to discuss about photophosphorylation reactions during photosynthesis process. So firstly, we are going to discuss about the definition of photophosphorylation. What is the exact definition of photophosphorylation? So here you have to divide the word photo and phosphorylation. What do you mean by photo? Photo means light, and phosphorylation means what? So phosphorylation means the process of formation of ATP, right? ATP formation की process को हम क्या कहते हैं? Phosphorylation कहते हैं. There are actually three ways of phosphorylation. How many ways of phosphorylation? Three ways of phosphorylation are there. Which are these? First, direct phosphorylation, or also called direct level phosphorylation. Second, substrate level phosphorylation, and third, photophosphorylation. Photophosphorylation, right? These are the three ways actually of phosphorylation process. Out of these three ways, these two ways are found during respiration process, that is in mitochondria, right? And this photophosphorylation found during photosynthesis process, that is in chloroplast. Clear? So we are going to discuss about photosynthesis. That's why we will discuss particularly about photophosphorylation. Done? So now the first point, as I told earlier, definition. So what is the definition of photophosphorylation? Photophosphorylation means formation of ATP in the presence of light. Formation of ATP in the presence of light in chloroplast. In chloroplast is called as photophosphorylation. Clear definition? Now, in photophosphorylation, there are two types. There are two types of photophosphorylation. Which are these? First, cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. Cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Here, what is the basic difference between cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation? The difference is given in this word: cyclic, non-cyclic. You may heard this word lot of time, that is cycle. What do you mean by cycle? जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड होना, इसको क्या कहते हैं? साइकिल, राइट? एंड नॉन साइक्लिक मीन्स व्हाट? जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे एंड नहीं होना. ठीक है, गणित की लैंग्वेज में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक को. विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, जब हमें इसमें डिफरेंस देखना है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, तो कैसे? तो रिपेल्ड इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन सेंटर के पास रिटर्न आता है,
When repelled electron comes back to reaction center, then photophosphorylation is called as cyclic photophosphorylation. And when repelled electron do not come back to the reaction center once again, it called non-cyclic photophosphorylation. Right? अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे रिपेल हुआ, तो ये आपको एक्शन ऑफ क्लोरोफिल में समझ में आएगा. ठीक है. बट हियर हम फॉस्फोराइलेशन के बारे में देख रहे हैं, तो पर्टिकुलरली साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. तो डेफिनेशन समझ में आई. रिपेल्ड इलेक्ट्रॉन अगेन आएगा रिएक्शन सेंटर के पास, तो साइक्लिक. रिपेल्ड इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन सेंटर के पास नहीं आया, नॉन साइक्लिक. डन. अभी हम पहले साइक्लिक के बारे में देखेंगे एंड देन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया. साइक्लिक मीन्स व्हाट. नाउ हाउ दिस साइकिल गेट्स कंप्लीटेड. सो इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, out of two photosystems, first, that is PS first photosystem is involved, and in PS first the reaction center is chlorophyll A700. What is the reaction center of photosystem first? Chlorophyll A700. Now how cyclic photophosphorylation begins? So here the sun rays from the sunlight of different wavelength arises, and out of that the sun rays of having wavelength 700 nanometer, they are accepted by chlorophyll A. Chlorophyll A becomes excited and he released electron. Now this is the repelled electron. एक्चुअली जो डेफिनेशन में हमने देखा था ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन, जो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल एक्साइट होता है, एट दैट टाइम रिलीज किया जाएगा. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय, फर्स्टली दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय FRS. व्हाट इज मीन बाय FRS? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. वो कौन है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? तो वो सब्सटेंस है FES. तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. एग्जामिनेशन में ये पूछेंगे, विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो आंसर विल बी द FRS or FES. Then what happens later on? There is a flow of this electron towards various electron carriers. Different electron carriers are involved here, and this electron is passes one by one to each and every electron carrier. So let's start how these electron carriers are situated and how electron is get passed. Now electron is accepted by FRS here. Then this electron is passes to the first electron carrier, that is FD. FD means ferredoxine, first electron carrier. Then from FD this electron is passes to the next electron carrier, that is cytochrome B6. Cytochrome B6, this is also an electron carrier. Then this electron is again passes to the next electron carrier, that is cytochrome F. Particularly in thylakoid membrane, where actually these light reactions are taking place, here cytochrome B6 and F, they are in complex form, so we call them cytochrome B6F complex. बट यहाँ पे मैंने सेपरेट करके दिया है क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कौन सी स्टेप में होता है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाई. सो साइटोक्रोम B6 से वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? टुवर्ड्स साइटोक्रोम F. Then from cytochrome F, this electron is passes to the last electron carrier, that is PC. PC means plastocyanine. Here, this plastocyanine is the last electron acceptor in cyclic photophosphorylation. What happens when electron comes towards the plastocyanine?
this plastocyanine passes this electron again to the reaction center, that is chlorophyll A700. Sometimes we call it P700. So the electron which is actually accepted by PC, that is plastocyanine, that electron is not written by PC. That electron actually again transported back to the reaction center by this PC, that is plastocyanine. Here the electron completed its cycle, right? यहाँ से रिपेल हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से वो अपनी जर्नी करते हुए लास्ट में फिर से रिएक्शन सेंटर के पास आया. दैट्स व्हाई फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. डन. हियर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर से जब ये इलेक्ट्रॉन वन बाय वन ट्रांसफर होता है तो एनर्जी कहां पे तैयार होती है. So when electron is transported from ferrotoxin to cytochrome B6, at that time one energy molecule is produced, that is ADP plus IP से 8 ATP बनेगा. Next, when electron is passes from cytochrome B6 to F, here also one ATP molecule will be produced, right? This is the actual output of cyclic photophosphorilation. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जो बाय प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है. So in cyclic photophosphorilation we are getting only ATP. We are not getting here NADPH. अब क्या है NADPH? So NADPH is also a reducing power of cell. तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH तैयार नहीं होता है. देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ ATP. एंड वेयर दिस ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पासेस फ्रॉम FD to B6, that is cytochrome B6, and from cytochrome B6 to cytochrome F. Clear? This is about cyclic photophosphorylation. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. रिएक्शन सेंटर कौन सा है ये ध्यान में रखना है. देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है वो ध्यान में रखना है. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. डन. नाउ हम जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. हियर in non-cyclic photophosphorylation what happens actually? So repelled electron cannot comes again back to the reaction center. This is the simple definition, right? Now in diagrammatic point of view we will understand the non-cyclic photophosphorylation. Here in non-cyclic photophosphorylation reaction or the process begins with PS second, not with PS first. Actually at last we will discuss about the difference between cyclic and non-cyclic. Don't worry. But here in non-cyclic photophosphorylation process begins with PS second. So PS second, that is photosystem second. In photosystem second, what is the reaction center? Reaction center is chlorophyll A680. Chlorophyll A680 means the wavelength of 680 nanometer will be accepted by chlorophyll A. The sun rays of having wavelength 680 nanometer, that wavelength will be accepted by this chlorophyll molecule. This is the simple meaning. Now, how this non-cyclic photophosphorylation taking place? Same way, once again, sun rays are coming from the source of light energy, that is sun. When these sun rays are accepted by chlorophyll A680, that chlorophyll A680 repels the electron. So ये तो आपको पता है कि जब सन रेज आएंगे तो वेव फॉर्म में ये क्लोरोफिल ये उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसे एक्सेप्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, वो एक्चुअली अलग टॉपिक है, ये हम उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे. तो फोटॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद क्लोरोफिल A680 एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है. नाउ हियर
this repelled electron firstly accepted by a component called as pheophytene. कौन सा कंपोनेंट उसे एक्सेप्ट करता है पहले? pheophytene. ये जरा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय फर्स्टली pheophytene. Then after pheophytene there are electron carriers. जिस इलेक्ट्रॉन कैरियर से ये इलेक्ट्रॉन एक के पास जाने वाला है, राइट? So here this electron which is at pheophytene now, this electron comes to the next electron carrier, that is PQ. That is plastic quinone. ये इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टिक क्विनोन के पास आ जाता है. Then from this plastic quinone, electron is transported to the next electron carrier, that is cytochrome B6. Here again this electron passes to the next electron carrier, that is cytochrome F. Okay, now as usual that is in cyclic. So यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर FD की जगह पे कौन है? FPQ, that is plastic quinone. Then electron is passes from cytochrome F to the next electron carrier, that is PC. And here, like cyclic photophosphorylation, this electron cannot return back to the PS second. Here plastocyanine passes this electron to the next photosystem, that is PS first. Here in examination question may be asked like that, the lost electron of PS first is replaced by. The answer is the lost electron of PS first replaced by PS second. ये कैसे? तो PS फर्स्ट में हमने देखा कि क्लोरोफिल A700 ये रिएक्शन सेंटर है. लाइट जब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की आती है तो ऑलरेडी ये PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन आगे पास होता है. हमने वो साइक्लिक में देखा. मतलब इस PS फर्स्ट में जो क्लोरोफिल ये है, इट इज इन आयोनाइज्ड स्टेट. उसे फिर से अगर ग्राउंड स्टेट में आना है तो ही नीड इलेक्ट्रॉन. फिर ये इलेक्ट्रॉन उसे कौन देता है? तो दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय PS सेकेंड. क्लियर? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये ध्यान में रखो कि लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ PS फर्स्ट रिप्लेस बाय PS सेकेंड. राइट? नाउ हियर व्हाट हैपेंस? द इलेक्ट्रॉन which is received by actually PS first, it becomes or it is in ground state now. Again he accepts the energy and again he repelled the electron. Now the repelled electron from the PS first accepted by as usual FRS. Here PS first में electron acceptor FRS. cyclic में याद करो जरा FRS. Then from this FRS, electron is passes to the next electron carrier, that is FD. Ferredoxin. Now, examination point of view, what happens with this electron here? It is very important. What happens when this electron comes to the FD? Here, FD passes this electron towards NADP plus. NADP plus. जरा ठीक से लिखता हूं. NADP plus. NADP plus. Actually NADP plus के पास आने से पहले this electron is actually accepted by FNR. What is FNR? Ferredoxin NADP reductase enzyme. FNR enzyme. तो इस एंजाइम के पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जाता है एंड वो एंजाइम दैट इलेक्ट्रॉन को पास करेगा टुवर्ड्स NADP प्लस. नाउ वो इलेक्ट्रॉन ये NADP प्लस रिटेन करके कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH. किसमें कन्वर्ट होता है? इनटू NADPH. एक्चुअली वो पहले तो NADP में कन्वर्ट होता है. इलेक्ट्रॉन पास करने के बाद रिटेन करने के बाद NADP प्लस से वो क्या बनता है? NADP. एक्चुअली ये H कहां से ऐड हो गया तो उसके लिए हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको देखना है, तब ये NADPH तैयार होता है. तो यहाँ पे सपोज मान के चलो कि तैयार हुआ है NADP.
इलेक्ट्रॉन रिटेन करने के बाद NADP यहाँ पे तैयार हुआ। नाउ हियर आपको ये समझ में आएगा कि व्हाई दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो इलेक्ट्रॉन रिपेल हुआ था फ्रॉम दिस रिएक्शन सेंटर, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉन को रिटेन किया गया बाय द NADP+। दैट्स व्हाई दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डन। नाउ यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि वेयर इज द ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F पास होता है तो बाय यूजिंग ADP+IP यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल तैयार होगा। डन। एंड यहाँ पे क्या तैयार हुआ है, NADP। नाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से और एक पॉइंट के बारे में डिफर है। वो पॉइंट कौन सा, वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब व्हाट इज मीन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो सिंपली ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू द लाइट, फोटोलाइसिस, राइट, जिसको आप हिल्स रिएक्शन भी कहते हो, है ना। तो यहां पे आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये भी ध्यान में रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, तो ये ब्रेकडाउन वाटर मॉलिक्यूल का कितने कंपोनेंट्स में होता है, तो 3 कंपोनेंट्स में होता है। कितने, 3, विच आर दिस 3 कंपोनेंट्स। तो ध्यान में रखो, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होके तैयार होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तैयार होता है प्रोटॉन एंड तैयार होता है ऑक्सीजन। दिस इज द हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन केयरफुली देखो आप, हाँ वो यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह वो तो लेटर ऑन का पार्ट है, बट वाटर मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेकडाउन होता है कितने कंपोनेंट में, 3 कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है एंड हमें ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। या आप वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट, उसमें आपको ये पता है। तो ब्रेकडाउन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, या ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो वाटर का होगा। फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन किसका होता है, तो CO2 का होता है, राइट। तो यहाँ पे हम वाटर के बारे में देखेंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है इनटू 3 सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। नाउ हमें ये देखना है कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में आएगा। नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हियर द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक। This electron, no, not using the word comes back actually, but this electron is carried by chlorophyll A680। यहां पे क्यों आता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है, क्लोरोफिल A680 के पास। अब देखो ये क्लोरोफिल A680 इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की वजह से आयोनाइज्ड स्टेट में गया है, इसको फिर से फंक्शनल अगर बनना है तो ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, एंड उसको ग्राउंड स्टेट में आना है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसका खुद का तो इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ये वाटर देता है उसे, एंड वो ग्राउंड स्टेट में आता है, अगेन रेडी टू एक्सेप्ट नेक्स्ट प्रोटॉन। डन। हियर दिस प्रोटॉन जो तैयार हुआ है, दिस प्रोटॉन इज एक्सेप्टेड बाय दिस NADP, एंड यहां पे बनेगा फिर NADPH। आया समझ में। तो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से NADP बना था। वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद जो प्रोटॉन है दैट इज H प्लस, वो इसके पास आया एंड ये बन गया NADPH, एंड ये ऑक्सीजन बाहर आया। क्लियर। अब यहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP भी तैयार हुआ है एंड NADPH भी तैयार हुआ है। जरा रिकॉल करो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहां पे ओनली ATP तैयार हुआ था, NADPH नहीं। ठीक है, ये जरा बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। नाउ जो मैंने आपको यहां पे कहा था कि क्या इंपॉर्टेंस है इस इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ PS फर्स्ट इज रिप्लेस्ड बाय PS सेकेंड, है ना। उसको ग्राउंड स्टेट में लाया इस इलेक्ट्रॉन ने, बट इसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए कोई तो चाहिए,
तो ये ग्राउंड स्टेट में आता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. ये इस क्लोरोफिल ये 680 को ग्राउंड स्टेट में लाएगा एंड फिर से वो न्यू फोटॉन्स एक्सेप्ट करके ये साइकिल को कंटिन्यू करेगा. ओके, सो दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्यों कहते हैं, समझ में आया? क्योंकि रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से नहीं आता. साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में कंपेयर करेंगे तो क्या नया है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पे नया है, क्योंकि वे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता है. डन. जनरली प्लांट्स में एटीपी एंड एनएडीपीएच जो तैयार होते हैं तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से तैयार होते हैं. एक उसके लिए अनदर टॉपिक है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे. तो इसमें आपको पता चलेगा कि मेनली दिस एटीपी एंड एनएडीपीएच, जिसको हम एक्चुअली रिड्यूसिंग पावर ऑफ सेल कहते हैं, ये इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम की वजह से तैयार होता है. डन. आया समझ में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? ओके. नाउ एट लास्ट we will see about the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अगर आप देखेंगे साइमल्टेनियसली तो आसान हो जाएगा और भी ये टॉपिक समझने के लिए. So here we write cyclic and here we write non-cyclic. Cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. नाउ इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे? पहला क्या डिफरेंस बताएंगे आप? पहला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द रिएक्शन सेंटर. टू द रिएक्शन सेंटर. एंड इन नॉन साइक्लिक repaired electron never comes back to reaction center. पहला डिफरेंस हो गया. सेकेंड डिफरेंस क्या है? इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व. Only PS first involves. Here in non-cyclic photophosphorylation, both the photosystems PS first and PS second involve. Done. Next, first electron acceptor कौन है? तो इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS, फेरोऑक्साइड रिड्यूसिंग सब्सटेंस, उसमें भी वो कौन? FES. हियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? वो है फियोफाइटीन. देन इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो रिड्यूसिंग पावर की हम बात करते हैं कि एटीपी एंड एनएडीपीएच दे आर रिड्यूसिंग पावर्स. तो इसमें कौन सी रिड्यूसिंग पावर तैयार होती है? तो इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली एटीपी फॉर्मेशन इज देयर. ओनली एटीपी फॉर्मेशन. बट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज एटीपी एंड NADPH फॉर्मेशन. एटीपी एंड NADPH फॉर्मेशन दोनों तैयार होते हैं. यहाँ पे ओनली एटीपी तैयार होता है. डन. नेक्स्ट, रिगार्डिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, होता है क्या बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में? नो. सो देयर इज ए नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड हियर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज देयर. फोटोलाइसिस ऑफ. सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है बेटा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में? अबाउट रिएक्शन सेंटर. एक्चुअली यहाँ पे वो टॉपिक कवर्ड होता है बट फिर भी हम सेपरेटली देखेंगे कि इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन सेंटर है P700 एंड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन सेंटर है P680. राइट. देन नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस पॉइंट है बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक अबाउट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. तो इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय PS सेकेंड.
and in non-cyclic lost electron is replaced by water. Done. So this is the basic difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Clear? अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का वो आपको ध्यान में रखना है. एटीपी कहाँ तैयार होता है, एनएडीपीएच का कहाँ कैसे तैयार होता है, वो आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ये डिफरेंस अगर कंपेरेटिवली आप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए आपको आसान हो जाएगा. डन. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो. डन.